Good morning to all of you. I Amit Kumar. I welcome you all in IIT Manthan. So hope that you are enjoying the video lectures. So you will slowly you are getting through the video lectures, and as you people go through the video lectures, then you will be given the assignments on the basis of lectures, and then the assignments should be completed by you people. You have to submit and attach on the app. Then it will be approved by your concerned teacher. So those people who are going through the video lectures and still not submitting the assignments when the assignment is given to you, so then the status of your assignment will be pending. Okay, so अभी तो हम असाइनमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, तो अभी आप लेक्चर्स में थोड़ा गो थ्रू हो जाइए. The moment you will feel comfortable, then your assignments will be given to you. So let us start the चैप्टर मोशन. तो मोशन में हमने अभी सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था. तो कल हमने थोड़ा कंपैरिजन किया था लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में. तो जैसे कि लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उधर हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, इट मीन्स इट ट्रेवल्स ए displacement in terms of angle. It means there will be angular displacement. It means circular motion में आपका angular displacement होगा और linear motion में आपका linear displacement होगा. Similarly, then come on to linear velocity. So linear velocity क्या होगा? Linear displacement divided by time. Similarly, angular velocity will be angular displacement by time. So angular displacement का जो symbol हम use करते हैं, that is your theta, because displacement is in terms of angle. So and omega is the symbol of angular velocity, so omega is equal to theta by t. Then in linear motion, then we come to acceleration, linear acceleration, that is linear velocity by time. Then we come to circular motion, then it is angular acceleration. So angular acceleration is nothing, it is just the ratio of angular velocity by time. मैं जल्दी से कोरिलेट कर देता हूं. So now chapter is motion. So linear सर्कुलर, लीनियर सर्कुलर. तो लीनियर में आपका होता है एस वेक्टर है, यहां पर होता है थीटा. तो इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है रेडियन. देन दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v. v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. Similarly, here it is omega. Omega is theta upon t, and its unit will be radian per second. Then we come to acceleration, linear acceleration, that is a is equal to this symbol, this arrow on the quantity, it will represent that these are the vector quantities. Vector quantities. So, what is its unit? Its unit is meter per second square. Then come on to angular acceleration, alpha, that is linear angular velocity upon time. Its unit is radian per second square. तो ये हमने कल किया था, और हमने कहा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स में ओमेगा यूज करते हैं तो थीटा विल बी 2 पाई एंड दिस स्मॉल टी विल बी गिवन बाय कैपिटल टी. दिस टी इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड. फिर मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि फंडामेंटल का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम हमारी घड़ी की बात कर रहे हैं, तो घड़ी में 3 तरह की सुई होती है. एक घंटे की सुई होती है, एक आपकी मिनट वाली सुई होती है, एक आपकी सेकंड वाली सुई. सो मीन्स इन ए क्लॉक वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ निडल. वन इज योर आवर निडल, वन इज योर सेकंड निडल, वन इज योर मिनट निडल. तो घंटे की सुई का जो फंडामेंटल टाइम है, मान लो घंटे की सुई कहीं पर भी है, ठीक है, तो उसी पोजीशन से चल के घूम के उसी पोजीशन में आने में घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगेंगे. 12 घंटे.
तो 12 घंटे बाद कोई भी घंटे की सुई किसी भी घड़ी में वो आपकी 12 घंटे बाद आएगी। तो इट मीन्स द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक फॉर द आवर नीडल विल बी 12 आवर्स। सिमिलरली मिनट की सुई किसी भी पोजीशन से अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए इट विल टेक 60 मिनट्स। सो द फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द मिनट नीडल इज 60 minutes. Similarly, the fundamental time period for the second hand will be your 60 seconds. So this is the fundamental time period. Let us try some numerical. So with that, the things will be clear to you. Duster कहाँ रख दिया भाई? तो उसको रब कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके सर्कुलर मोशन के बिहाफ पे, जिससे कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं कि सर्कुलर मोशन में हम किस तरह से वेलोसिटी निकालेंगे, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, किस तरह से हम जो भी चीज़ें हैं वो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में घूम रहा है, ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय इट इन कंप्लीटिंग हाफ साइकिल। तो वो कह रहा है कि हाफ साइकिल, तो सर्कल का हाफ साइकिल क्या होता है, मान लो यहां स्टार्ट किया तो वो यहां से यहां पर आ गया, इट मीन्स ए टू बी। मतलब कोई पार्टिकल आपका सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसकी रेडियस r है, रेडियस क्या है r। सो अगर सर्कल आपका हाफ साइकिल, देखो सर्कल का पूरा साइकिल होता है यहां से स्टार्ट होके यहीं पर आ जाए तो होता है वन साइकिल, और यहां से यहां तक आए तो इट मींस हाफ साइकिल। तो वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन हाफ साइकिल, तो क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है। तो वी नो दैट कि सर्कल के चारों तरफ अगर मैं घूमूंगा इट मींस हम क्या निकालने जा रहे हैं, सरकमफ्रेंस। इट मींस द पार्टिकल इज रोटेटिंग अलोंग द पेरिफेरी, इसके चारों तरफ घूम रहा है। इट मींस distance will be found out in a circular motion when the particle is rotating along the circular path, it will be circumference। तो जैसे कि यहां पर सर्कल पूरा नहीं हो रहा है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन वो होता है पूरे का, तो हमें कहां का निकालना है, आधे का। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय 2। दिस इज योर distance for half cycle, so it will be pi r। so pi r is the distance traversed by the particle when it is rotating along a circular motion and it covers only half cycle। तो हाफ साइकिल का मतलब ये है कि सर्कल ने, जो पार्टिकल है वो हाफ सर्कल चला। तो पूरे सर्कल का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फुल सर्कल, और हाफ सर्कल का मतलब क्या है, इट इज योर 2 पाई r बाय 2। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ फॉर ए हाफ साइकिल, इट मींस इट इज पाई r। इट मींस पाई r आपका आंसर होगा। क्लियर, ओके। So now next ट्राई कर लेते हैं। So next is an athlete completes one round of a circular track of radius 10 meter in 40 second। तो एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड पूरा करता है
जो कि 10 मीटर की इसकी रेडियस है। तो राउंड तो मीन सर्कल। तो दिस इज द रेडियस। तो एथलीट मान लीजिए यहां से चला, यहां से चलकर वो यहीं पर आ गया, इट मीन्स एक राउंड, दिस इज 1 राउंड। तो इस एथलीट ने सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में, मतलब एक राउंड पूरा करने में, जिसकी रेडियस क्या है 10 मीटर है, टाइम कितना लगा उसको, टाइम टेकन इज 40 सेकेंड। तो इट मीन्स एक राउंड पूरा करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं। एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले हम राउंड निकालना है, तो कितने में निकालना है 2 मिनट 20। तो 2 मिनट 20 सेकंड, अगर आपको याद हो हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। तो 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है, तो इसके निकाल लेते हैं। 2 मिनट मीन्स 120 सेकंड प्लस में 20। तो जब वो 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है तो 20 में करेगा वो हाफ राउंड, एंड 120 में करेगा वो 3 राउंड। तो टोटल राउंड कितने हो गए 3 + 1/2 कितना हो जाएगा 3.5। इट मीन्स राउंड, टोटल राउंड विल बी, टोटल राउंड विल बी 3.5। 3.5 समझिए कि एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। इट मीन्स 40 सेकंड में उसने किया एक राउंड। सो इन 40 सेकंड, इन 40 सेकंड राउंड इज 1 राउंड। तो 20 सेकंड में कितना होगा 20/40। इट मीन्स हाफ राउंड होगा। सिमिलरली जब 40 सेकंड में एक किया तो 120, तो 120 40 का 3 गुना है। तो कितने राउंड होंगे 120 में, 120 सेकंड में होंगे 3 राउंड। तो 3 राउंड ये देखो 120 सेकंड 3 राउंड के 20 सेकंड में आधा, तो कितना हो गया टोटल राउंड हो गया 3.5। इट मीन्स उस एथलीट ने 3.5 राउंड लगाए उस सर्कुलर ट्रैक के 2 मिनट 20 सेकंड में। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो अब मुझे पता है कि 1 राउंड का मतलब ये हुआ कि इसने एक सरकमफ्रेंस पूरी की, तो 2πr हो गया। और राउंड कितने हैं 3.5, कितना हो जाएगा 3.5 × 2πr, दैट इज 7πr, एंड r इज योर 10। तो 70 पाई इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 राउंड्स। तो एथलीट ने 40 सेकंड में एक राउंड पूरा किया जो कि सर्कुलर ट्रैक था, और उसका रेडियस क्या था 10 मीटर। तो 10 मीटर वाले रेडियस के सर्कुलर ट्रैक को एक एथलीट ने 40 सेकंड में पूरा किया एक राउंड। तो आपको निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस पूरा करेगा, जबकि हमें पता है कि एक राउंड का मतलब ये होता है कि 2πr मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इट मीन्स पहले मुझे गिवन टाइम में जो उसने पूछा है कि उसमें राउंड निकालने पड़ेंगे। तो जब 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है तो 2 मिनट मीन्स 120 + 20। तो जब 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है तो 20 में क्या करेगा आधा करेगा, बिकॉज टाइम इज हाफ, तो राउंड इज हाफ। तो 40 सेकंड में एक राउंड, 40 में एक राउंड किया तो 20 सेकंड में आधा राउंड करेगा। 120 सेकंड में कितना करेगा, जब 40 में एक कर रहा है तो 120 40 का 3 गुना है, तो 3 राउंड करेगा। टोटल राउंड कितने हो गए 120 सेकंड के 3 राउंड हो गए और 20 के आधा, तो 3 + 0.5 3.5। तो इट मीन्स 3.5 3.5 राउंड लगाए उसने उस सर्कुलर ट्रैक के। इट मीन्स एक राउंड में 2πr होता है, तो 3.5 में कितना होगा 3.5 × 2πr,
3.5 into 2 is 7 and r is 10, तो 70 pi आ गया. So 70 pi is the distance traveled by the athlete in 2 minutes 20 seconds by the athlete while going along a circular track whose radius is 10 मीटर. तो आंसर कितना आ गया? 3.5 राउंड इक्वल टू 70 पाई. क्लियर? So next question is, a wheel covers a distance of 9.5 kilometer in 2000 revolution. In 2000 revolution. So find the diameter of the wheel. तो एक व्हील कवर्स a distance of 9.5 किलोमीटर in 2000 revolution. तो 9.5 किलोमीटर वो 9,000 रेवोल्यूशन पूरा करता है. तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए दिस इज अ व्हील, दिस सेंटर. तो ये जो व्हील है ये 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर कवर करता है. कितने रेवोल्यूशन में? 2000 रेवोल्यूशन में. 2000 रेवोल्यूशन में. तो देखिए मैं मान लीजिए ये व्हील है यहाँ पर, ठीक है. मैंने यहां से स्टार्ट किया ये व्हील ऐसे घूमा, तो ये कितना रेवोल्यूशन हो गया? 1 रेवोल्यूशन हो गया. इट मींस जब ये व्हील 2000 बार घूमा, 1 2 3 लाइक दिस, तो जब ये व्हील 2000 बार घूमा तो इसने डिस्टेंस कवर किया 9.5 किलोमीटर. और आपको निकालना है कि व्हील का डायमीटर कितना होगा. तो जब एक रेवोल्यूशन हुआ, जब एक बार घूमा, मतलब व्हील जब एक बार घूमा, इट मींस सर्कल का सरकमफरेंस वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर. 2 पाई आर. और जब 2000 बार घूमा, 2000 इंटू 2 पाई आर. तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 pi r. 2000 revolution will be equal to 2000 into 2 pi r. तो अब यहां पर डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस, तो 2000 बार घूमा तो कितना डिस्टेंस है? 9.5 किलोमीटर. मीन्स 2000 इंटू 2 pi r will be equal to 9.5 किलोमीटर को मैं 1000 में कन्वर्ट कर लेता हूं. So it will be 9500. So ये 2000 है इधर, एंड इसको पाई को यहां ले देता हूं और ये हो जाएगा 2r. तो मुझे निकालना है डायमीटर ऑफ द व्हील. इट मींस व्हाट इज दिस? दिस इज योर डायमीटर. सो पाई 2000 d 9500. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. एक व्हील आपको दिया हुआ है, वो व्हील जब 2000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, तो जब व्हील घूमेगा एक बार तो मींस 1 सरकमफरेंस, 2 बार घूमेगा 2 सरकमफरेंस, 3 बार घूमेगा 3 सरकमफरेंस, 2000 बार घूमेगा तो 2000 सरकमफरेंस. एंड व्हाट इज सरकमफरेंस? 2 पाई आर. तो वो कह रहा है कि जब ये व्हील 2000 रेवोल्यूशन पूरे करता है तो तब आपका डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 9.5 किलोमीटर है. तो एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर. और 2000 रेवोल्यूशन 2000 गुना में 2 पाई आर. तो जब 2000 रेवोल्यूशन किए वो किसके इक्वल है?
9.5 किलोमीटर था, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये बन गया 9500। ये 2 और मैंने इकट्ठा लिखा क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो मुझे ऑलरेडी तो 2 आर क्या होता है, रेडियस का डबल डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, यहां तक डायमीटर हो गया। सो इसको ना डी लिख दिया, तो डी क्या आ जाएगा यहां से, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। डी विल बी 95 डिवाइड बाय 20 इंटू 22/7। सो D इज इक्वल टू, काट लीजिए इसको, 5 से किया तो 19, 5 4 जा तो 19 सत्ते 133। इट मीन्स 19 7 जा 133 एंड 22 चौके 88। तो D निकालना है, तो 88 से डिवाइड कर दीजिए। 88 1 जा 88, 5 45 हो गया 0.0। सो 8 पंजे 40, 8 6 48, सो 5 पे जाएगा, तो मीन्स 1.5 मीटर इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर इज द डायमीटर ऑफ द व्हील व्हेन द रेवोल्यूशन आर 2000 एंड द इन 2000 रेवोल्यूशन डिस्टेंस इज व्हाट 9.5। मैं रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि व्हील ने एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर मतलब क्या हुआ, 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन में उसने 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो कह रहा है कि उसने ये व्हील 2000 रेवोल्यूशन लगाए, मींस 2000 बार घुमा। एक बार घुमा तो 2 पाई आर, 2000 बार घुमा तो 2000 गुना में 2 पाई आर, और ये घूमने पे डिस्टेंस कितना है 9.5 किलोमीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू 9.5 गुना में 1000 मीटर। तो इट विल बी 9500 एंड 2000। ये 2 आर मैंने इकट्ठा लिख दिया, इस आर और 2 का इकट्ठा लिख दिया, 2 आर क्या है मेरा डायमीटर, और डायमीटर मुझे निकालना है। सो दिस इज डायमीटर। सो 2 0 2 0 कैंसिल कर दी मैंने। 95 डिवाइड बाय 20 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 5 से काटा, 5 4 20, 5 95 25, 19 7 जा 133, 22 into 4 88 डिवाइड किया, you will get diameter of the wheel when 2000 revolution will be equal to 9.5 kilometer. It is 1.5 meter, 1.5 meter. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा बस। वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। Next question is, a flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm. rpm मतलब revolution per minute. Revolution per minute. Angle described by the shaft in radian in 1 second. मीन्स आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा। ठीक, तो फ्लाई व्हील एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 3000 rpm। ओके, इट मीन्स आपको देखो पहले तो हम पता करेंगे कि ये दिया क्या हुआ है। क्या बोल रहा है, ए फ्लाई व्हील रोटेट्स। ठीक, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। फ्लाई व्हील ऐसे घूम रहा है, इट मीन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। इट मीन्स वो स्पीड कौन सी होगी, एंगुलर। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी होगी, या एंगुलर स्पीड बोल सकते हो। इट इज ओमेगा। कितना दिया हुआ है, ओमेगा इज 3000 आरपीएम। आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, जबकि ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन पर सेकंड। तो समझो
इट मींस पहले मैं इसको चेंज कर लूं तो 3000 हो गया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई। सो इनटू 2 पाई डिवाइड बाय पर मिनट 1 मिनट। सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। सो नाउ 60 से किया 500 इट मींस 1000 पाई इज योर ओमेगा। 1000 पाई इज योर ओमेगा। कितना है ओमेगा 1000 सॉरी 100 पाई 65 0 कितना आ गया। दिस इज योर एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिए, आपको एक फ्लाई व्हील की रोटेट होने की कांस्टेंट स्पीड कितनी दी हुई है 3000 आरपीएम। तो इट मींस ये एंगुलर स्पीड है और वी नो दैट एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितना दिया हुआ रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना चक्कर काटेगा वो एंगल इज 2 पाई। तो 3000 इंटू रेवोल्यूशन, देखो रेवोल्यूशन पर मिनट एक रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई हो गया पर मिनट मींस डिवाइड बाय 1 मिनट एंड इट शुड बी सेकंड। तो एक मिनट में 60 सेकंड हो गए तो काट लीजिए 60 से काटा 50 आ गया इंटू 2 पाई मींस 100 पाई। तो 100 पाई रेडियन आ गया। सो 100 पाई इट मींस द एंगल तो क्या निकालना था हमें एंगल। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इज 100 पाई रेडियन दैट इज इन 1 सेकेंड। तो क्या आ गया एक सेकंड में कितना एंगल आ गया 100 पाई। सो दिस इज योर। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई थी, एंगुलर स्पीड आपको दिया हुआ था और फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा था सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड पे। तो इट मींस ओमेगा क्या होगा 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। और हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है रेडियन। तो रेडियन के लिए मींस पाई का होना बहुत जरूरी, मैंने बताया था आपको। तो 3000 रेवोल्यूशन मतलब हुआ 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में एंगल की बात कर रहे हैं एंगल, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब हुआ 360 डिग्री। यहां से यहां तक आए कितना 360 डिग्री हो गया 360 डिग्री इंटू पाई बाय 180 इट विल बी 2 पाई। तो इट मींस एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल हुआ 2 पाई रेडियन और पर मिनट है पर सेकंड। इट मींस एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो डिवाइड किया तो ये क्या आ गया दिस विल बी योर एंगल ये 1 सेकंड। इट मींस 100 पाई रेडियन एंगल इन 1 सेकंड। तो आंसर क्या आ गया दिस इज थीटा। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकंड विल बी योर 100 पाई रेडियन। 100 पाई रेडियन। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा गो थ्रू हो जाइए, देख लो एक बार। तो हमने आज 3 टाइप के क्वेश्चन किए। एक में तो आपको सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, एक ट्रैक दे दिया, कितने मिनट कितने सेकंड में वो पूरा कर रहा है। तो हमने फिर वहां पे क्या निकाला डिस्टेंस निकाला। तो पहले हमने राउंड निकाल लिए, ठीक है। आपको गिवन था कि 1 राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में और आपको निकालना था 2 मिनट 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इट मींस हमें पहले राउंड निकालने पड़ेंगे। तो हमने राउंड निकाले फिर हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो जब भी हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इट मींस अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एंड वन रेवोल्यूशन और 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। और अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल की, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन 1 राउंड और इन होल सर्कल और इन 1 साइकिल दैट इज योर 2 पाई रेडियन। तो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया वो हमने किया था ये कि आपको डायमीटर निकालना था, आपको रेवोल्यूशन दिए हुए हैं। वो कह रहा था कि 2000 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है व्हील मींस
2000 रेवोल्यूशन में वो 9.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, आपको डायमीटर निकालना है। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस 2πr। तो एक रेवोल्यूशन में 2πr किया, 2000 में 2000 गुना में 2πr किया, वो किसके इक्वल था, 9.5 किलोमीटर के। फिर मैंने 9.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, देन मैंने 2r निकाला, क्योंकि डायमीटर निकालना है। तो 2r विल बी डायमीटर, तो d विल बी इक्वल टू, अगर ध्यान हो आपको, 9500 डिवाइड बाय 2000 पाई। तो 20 कैंसिल हो गई थी, तो 95 बाय 20 इंटू 22, ऊपर 7 आ गया था। देन यू सॉल्व इट, यू विल गेट डायमीटर विल बी इक्वल टू 133 बाय 88, एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 1.5 मीटर। So diameter of the wheel when it is revolving 2000 times and having distance 9.5 किलोमीटर, it is 1.5 मीटर। मीन्स उस व्हील का डायमीटर कितना था, 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमने किया कि आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एक फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड पे, सॉरी कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो क्या स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड। मीन्स वो सर्कुलर मोशन में, मतलब फ्लाई व्हील क्या होता है, हमने एक रस्सी ली, रस्सी ऐसे घुमा रहे हैं, वो क्या है, फ्लाई व्हील है, दैट इज फ्लाई व्हील। कोई भी चीज हम सर्कल पास में घुमा रहे हैं, वो फ्लाई व्हील है। तो फ्लाई व्हील आपकी रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड पे, वो कितनी देर की है, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। जबकि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। तो मैंने भी बोला आपको, एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2π रेडियन। इट मींस एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है, और 360 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम इनटू पाई बाय 180, इट इज 2π रेडियन। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन मींस एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन पर मिनट, मींस बाय 60 सेकेंड। तो डिवाइड किया 60 से, 50 into 2, इट मींस 100 पाई रेडियन इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड बाय द फ्लाई व्हील। तो वो हमें निकालना था। तो कितना आ गया, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड विल बी हाउ मच, इट इज 100 पाई। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो, इट शुड बी इन पाई, रेडियन का मतलब होगा पाई वहां होगा। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो, शुड बी इन किलोमीटर। एंड रिमेंबर दिस थिंग, स्पीड हमेशा रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है, पर सेकंड। अगर मिनट दिया हुआ है, उसको 6 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो आई थिंक द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो आज हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल किए, तो इससे आपको धीरे धीरे क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्या से निकालना है, किस तरह से निकालना है। So I hope you are enjoying the video lecture. So you will see this lecture, go through the lecture, and if any doubt is you are having, so anytime you can chat in the app, and if some doubt is there, you can ask your question and I will try to resolve the problem. So thank you, take care, be safe and stay at home. Thank you.